हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल। ठीक है आप सभी। चलिए बढ़िया बात है। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेमली रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट लेट वी डिस्कस इट्स स्टेटमेंट and then we will understanding by taking few example. After taking few example we will be basically able to understand it very clearly. Okay, चलिए पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1. ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आप पॉलिनोमियल चूज कर रहे हैं वो कम से कम लीनियर पॉलिनोमियल तो हो ही। ठीक। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है ए। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, ये जो नंबर है ए, हमने इसको इस एक्स से यहां माइनस किया है, एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ए। यहां याद ये ध्यान देने वाली बात है, हमने ऐसे तो सीख रखा है कि इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल देन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए। At the place of x I have to put a। लेकिन जो बात यहां ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो जिससे पॉलिनोमियल जिससे आपको डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है, अगर वो x माइनस ए है तब आपको x के प्लेस पर प्लस ए लिखना है। अगर यही होता x प्लस ए, देन एट द प्लेस ऑफ x यू मस्ट राइट p माइनस ए। रिमेंबर, ओके। ये चीज यहां ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी डायरेक्ट x माइनस ए फॉर्म में भी नहीं होंगे। मान लीजिए 3x माइनस 2 है तो हमें इसे x माइनस ए फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। हमें देखना होगा अगर हम इसको x माइनस ए फॉर्म में लिखें तब व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a एंड देन वी विल पुट हियर। यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली व्हेन वी टेक सम एग्जांपल। ओके, सो लेट वी स्टार्ट फ्यू एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ओके ओके, लेट वी टेक फर्स्ट एग्जांपल. First example is from NCERT. It is first question. You are given that there is a polynomial px and the polynomial px is x raised to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1. That is that px. And I have to divide it by x minus 1. Suppose it is represented by gx. I'm representing divisor by gx and gx is given x by x minus a. X minus, I'm sorry, it is x minus 1. The value of a is given to us. Now what question arises? I can divide it by this method also. X raised to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1, and I can divide it by x minus 1 also. I can find the quotient as well as remainder. I am doing it completely. पहले मैं आपको ऐसे भी करके दिखाता हूं और मैं देखने की कोशिश करूंगा what will be the remainder here. And then we will use remainder theorem to find remainder only. Remember, using this theorem directly you can find remainder. पूरा complete division नहीं होगा इससे। इससे तो केवल आपको यह पता लग जाएगा कि remainder क्या आने वाला है। तो हम इसको करके देखते हैं। पहले हम complete divide करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि क्या remainder theorem यहाँ पर completely applicable है, होगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। चलिए देखते हैं। First x minus 1 x, we have to observe the powers of these two only. हमें पहले केवल इसको और इसको कैंसिल आउट करना है। इसके लिए हमें यहाँ x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। x क्यूब इंटू एक्स विल बिकम x raised to the power 4. So we will get x raised to the power 4, but x cube ones are x cube. So minus x cube will also come here when we will multiply it by x cube. So it will become x raised to the power 4 minus x cube. Now I have to cancel it, so I have to subtract so that d can be cancelled out, but it will become positive now. No problem. These are cancelled, and now we'll get x cube plus x cube, 2x cube minus 2x square plus x plus 1. Now what should be written here?
it should be 2x square, because 2x square into x is 2x cube. So it will become 2x cube. 2x cube ones are 2x square plus minus minus, okay, plus x plus 1. Change the sign, subtracting, minus plus minus minus 2x cube. Oh, what I'm writing, I'm sorry बच्चों. 2x square into 2x cube, or 2x square बन जाए 2x square, and this is also cancelled out, so I am only getting x plus 1 here now. Now x, so it should be plus 1. So x 1 ja x, and 1 1 ja minus plus cancel out 2. So 2 is remainder here. Let me check it once again. X cube, x4, x into 2x square will become 2x cube. यहाँ पर 2x cube बचेगा. 2x square बन जा 2x square, 2x cube, and 2x square बन जा 2x square. Both are cancelled. That is why directly we are having x plus 1. So it is the answer. So what we are observing? We are observing the remainder as 2. Suppose it is represented by Rx. Though x is not here. Okay, but you can represent remainder as Rx. Okay, चलिए आगे देखते हैं. अब अगर हम इसी के लिए डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम यूज करें, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम जो Rx यानी रिमाइंडर होना चाहिए, it should be equal to P. At the place of A we are having 1 here, it should be P1. So let me put the value of P as 1. 1 raised to the power 4 plus 1 cube minus 2 into 1 square plus 1 plus 1. So it will become 1 plus 1 minus 2 plus 1 plus 1, 1 and 1 2, so answer is 2. So in this manner directly we are having remainder as 2. It is the basic use of remainder theorem. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डायरेक्टली बिना कंप्लीट पूरा होल प्रोसीजर करे हुए भी आप ये पता लगा सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है. इसीलिए हमने इसको किया था. लेकिन पहली बार में बच्चे इसमें कंफ्यूज होते, बोले सर क्या कैसे पुट कर दिया, कैसे आपने ये ए निकाल लिया. हम इसको और क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे. ओके, देखिए एक और लीजिए एग्जांपल. इसको लेते हैं, कौन सा एग्जांपल, ये बढ़िया है. चलिए इसे देखिए. आपको दिया गया है पॉलिनोमियल px एज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8, और आपको इसको डिवाइड करना है. gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1. इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्ट ए नहीं पता लगा पा रहे हैं क्या है. अगर मुझे ए निकालना है तो मुझको इसको पहले x माइनस ए फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. मैं कैसे पता लगाऊं कि अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है जो बेसिकली पी ए मिलना चाहिए, what should be the value of a here. अब मैं यहां a की वैल्यू कैसे निकालूं? The easiest way is that जो भी आपको gx गिवन है इसको 0 पुट कर दीजिए. इससे आपको मिल जाएगा 2x plus 1 is equal to 0 and you will get x is equal to minus 1/2. ये जो minus 1/2 है that is actually the value of a. इससे आप ये पता लगा लेंगे कि यहां a की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है. तो यहां आपको a की वैल्यू पुट करनी है minus 1/2. So it will be p minus 1/2.
तो अगर आप यहां आप a की जगह या x की जगह पर -1/2 पुट करेंगे, then you will be able to find the remainder when you will divide that px by gx. Okay, what it will be? Okay, let me put the values. 2 -1/2 whole cube plus 3 -1/2 whole square minus 11 -1/2 -8. I have to calculate it. It will become 2 -1/2 whole cube will be -1/8 plus 3 -1/2 square is 1/4 minus plus 11/2 -8. Let me solve it again. It will become -1/4, 2 4 ja 8 plus 3/4 plus 11/2 minus 8/1. ऐसे लिख लेते हैं इसको. Now what will be the LCM? LCM will be 4. 4 1s are 4. It will be -1 plus 3 plus 2 2s are 22 minus 8 4s are 32. So it will become finally 22 plus 3 is 25 and 32 minus 1 minus 33. So it will be minus 33 plus 25 upon 4. It is -8/4 and we get that remainder Rx is -2. So in this manner we can find the remainder. यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसको पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करता तब भी रिमाइंडर -2 ही आता. तो अगर मुझे केवल रिमाइंडर चाहिए, मुझे कोशेंट नहीं चाहिए, केवल रिमाइंडर चाहिए, देन आई कैन अप्लाई दैट रिमाइंडर थ्योरम. बस समझ में आई आपके ये? हाँ, चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी पर बेस्ड. इसको देखिएगा, ये इसका एप्लीकेशन है. ओके, पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए. जब आप इसको नोट कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे. ओके, चलिए देखते हैं. Okay, बच्चों, it is question number 3 of this video. Question is that if x minus 2 is a divisor of px, you are given a polynomial px and px is 3x square minus kx plus 10 and gx is x minus 2. They are saying that gx is a factor of px. अब अगर gx इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये gx इसको कंप्लीटली कैंसिल आउट करेगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं. बस समझ में आ रही है? रिमाइंडर 0 बचेगा. तो यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और ये मानकर चलेंगे कि क्या आप यहां a पहचान रहे हैं? व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ a? ऑब्वियसली इट शुड बी +2. ओके, जब हम इसको x माइनस a से कंपेयर करेंगे, x प्लस a से, देन एट द प्लेस ऑफ a वी विल गेट 2 एंड व्हाट वी हैव टू पुट? वी हैव टू पुट +2. ओके, अगर यहां x माइनस ए होता है तो हमें a पुट करना होता है, x प्लस ए होता है तो हमें माइनस ए पुट करना होता है. यहां x माइनस ए फॉर्म में ही है, तो ये जो वैल्यू हमें नजर आ रही है ये 2 हमें यहां पुट करना होगा. इज दैट क्लियर? चलिए, तो हम अगर रिमाइंडर चाहते हैं जो यहां 0 होना चाहिए, ये अब अंडरस्टूड है कि रिमाइंडर ऑफ दिस जो भी हम ये डिवीजन करेंगे ये 0 आना चाहिए. और हम ऐसे भी कह सकते हैं इन अनदर वे, p2 must be equal to 0.
क्यों? क्योंकि रिमाइंडर के लिए तो हमें यहाँ x के प्लेस पर 2 ही पुट करना है। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और u में से 2 to the 4 3 is 12 माइनस 2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और you will get 2k is equal to 12 plus 10 22 और you will get k is equal to 11। तो अगर यहाँ 11x होता तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता। ओके बच्चों, तो हम अभी और अगले वीडियो में इसी पर रिलेटेड और भी कुछ कॉलेज से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बच्चों।